किसानों की ताईद में विजयवाड़ा में ऑल इंडिया किसान संगम की जानिब से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसान रैली को दीगर तंजीमों ने भी अपनी ताईद का ऐलान किया और एहतजाज में शामिल हो गए। विजयवाड़ा के BRTS रोड से रैली का आगाज हुआ। रैली में शरीक लोगों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद ने किसानों के 3 कवानीन को वापस लेने की मरकज से मांग की। साबिक रुकन असम्बली M.A. गफूर ने बताया कि किसान कवानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए गुज़श्ता 40 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मरकज़ की BJP हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने की मोदी हुकूमत से अपील की। In support of the ongoing Kisan struggle, we are in Vijayawada organizing a tractor rally and a vehicle rally because the central government is the most adamant central government we are seeing. Nearly 40 days they are on the roads in heavy cold waves and nearly 40 people died there itself. Inhumanly the central government is neglecting the Kisans. That is why in Vijayawada we are giving a warning to the central government because they are thinking that this is only Punjab Air Station. No, this is not Punjab Air Station. This is All India Station, and the working class and the common people are supporting the Kisan. They should realize it. Otherwise they will face a challenge because the 8th Bharat Bandh, great success in entire country. They should learn a lesson. So we are today, it is a symbolic rally in support of the Kisans who are struggling in the cold at Delhi. रियासत में आए दिन मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। कसूरवारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए संजीदा है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत के 13,000 से ज़ायद मंदिरों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले को लेकर अपोजिशन पर निशाना साधा। కాలాలు మారాయి, సైబర్ నేరాలు వచ్చాయి, సోషల్ మీడియా పేరుతో యథేచ్ఛగా అబద్ధాలు చెప్పే యుగంలో ఈరోజు ఉన్నాం. వైట్ కాలర్ నేరాలు కూడా పెరిగిపోయాయి. యుగం మారింది. బహుశా దీన్నే కలియుగం అని కూడా కలియుగంలో కూడా ఇది క్లైమాక్స్కి వచ్చి వస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఈరోజు దేవుడు అంటే భయము లేదు, దేవుడు అంటే భక్తి లేని పరిస్థితిలోకి ఈరోజు వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది. రాజకీయాల కోసం చివరికి దేవుణ్ణి సైతం కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. దేవుణ్ణి సైతం రాజకీయాల్లోకి తీసుకొని వచ్చి దేవుని ద్వారా కూడా ఆ రాజకీయాల ద్వారా కూడా మేలు పొందాలి అనే ఆలోచనలు చేసే దారుణమైన కలియుగం క్లైమాక్స్లోకి ఈరోజు మనం ఉన్నాం. ఈరోజు నిజంగా దేవుడు విగ్రహాలుతో ఈరోజు చెలగాటం ఆడుతూ ఉన్న పరిస్థితులు ఈరోజు గమనిస్తూ ఉంటే ఒకసారి నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, వీళ్ళు అసలు మనుషులేనా అని చెప్పి. నిజంగా భయము, భక్తి, దేవుడు అంటే ఏమీ లేని పరిస్థితులు. ఇటువంటి నేరాలను కూడా ఎక్కడో మారుమూలన, ఎక్కడో ఒక ఊరిలో, ఒక చిన్న ఒక గ్రామంలో ఎవరు మనుషులు లేనప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట ఎవరు మనుషులు లేని టైంలో ఒక చిన్న గుడిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ దేవుని విగ్రహాలను విరగొట్టి మరుసటి రోజు సోషల్ మీడియాలోనూ, మరుసటి రోజు ప్రతిపక్షానికి పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రచ్చ చేయడం, దానికి వాళ్ళకు సంబంధించిన ఎల్లో మీడియా పేపర్లు, ఎల్లో మీడియా టీవీలలో దాన్ని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో చూపించడం, నిజంగా కులాలను, మతాలను ఈ మాదిరిగా రెచ్చగొట్టే పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అసలు ఎటువంటి క్రైమ్స్ మీద మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంది అన్నది ఒక్కసారి మనమంతా కూడా ఆలోచన చేసుకోవాలి. करनूल में वार्ड नंबर 10-13 बेघर अफराद में घरों की अराजी के पट्टे तकसीम किए गए। मकामी रुकन असम्बली के हाथों बेघर अफराद में अराजी के पट्टे तकसीम किए गए। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें हज़ारों अफराद ने हिस्सा लिया। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने पदयात्रा के दौरान जो वादा किया था इसको पूरा किया है। अब रियासत में कोई भी ख़ानदान बेघर नहीं रहेगा। हफीज़ खान ने कहा कि ज़िला करनूल के 21,000 बेघर अफराद में मकानात की अराजी तकसीम की जाएगी। ये सिलसिला मरहलावार तौर पर जारी रहेगा। लाइन शुरू हुई तो बाहर गेट तक लाइन में ठहरे हुए रहते थे।
मगर आप लोगों को कोई पुरसानी हाल नहीं था। कौन सा फॉर्म फिल करना आप लोगों को नहीं आता था, किसके पीछे जाके बोले तो काम होता नहीं मालूम था। कई लोगों ने जो है 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए देके वो पैसे भी डूब गए, वो आदमी भी चले गया, रेशन कार्ड मगर नहीं आया। आज हमारी गवर्नमेंट में आपके पास रेशन कार्ड नहीं है, आप हकदार हैं, आप 300 यूनिट से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं खर्च कर रहे, आपको जो है मिलना चाहिए तो घर को लाके आपका रेशन कार्ड दे। आपको जो है पेंशन आना चाहिए, घर को आके वॉलंटियर आज आपको पेंशन देना। आपके बच्चों को, मैकेनिक शॉपों को, आंध्र प्रदेश स्टेट का मोस्ट पावरफुल पर्सन, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, चीफ मिनिस्टर, किसी को भी बोल दिए तो हो जाता काम, मगर उन्होंने खुद बैठ के ये गरीब बच्चों के साथ हर दिन अलग अलग खाना होना, छोटे बच्चे रहते जिद करते एक ही चीज। कर्नूल जिला परिषद के अहाते में बीडी वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर धरना दिया। एहतजाजी बीडी वर्कर्स ने सर्वे नंबर 174, 175 और 176 में मौजूद तमाम खानदानों को पट्टेजात जारी करने का मुतालबा किया। बीडी वर्कर्स यूनियन के सदर इकबाल हुसैन ने बताया कि 12 साल कबल उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने बीडी वर्कर्स के लिए अराजी अलॉट की थी। अब जबकि मौजूदा हुकूमत के चंद लीडर्स गरीब बीडी वर्कर्स की अराजी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाजी बीडी वर्कर्स ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। 12 साल के नीचे 2008 में कर्नूल शहर में जो बीडी काम कर रहे हैं, जो बीड़ा गरीब आदमियों को बीड़ा घर नहीं घर दाद नहीं सुनो को सबको हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम करके सैंक्शन करा ले को बीडी वर्कर्स यूनियन तरफ से सैंक्शन करा को जो हमें स्टेट गवर्नमेंट ये करे उसके नीचे 5000 रुपये बीडी बन के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम को डिपॉजिट भी करके हैं। इसको भी करने के बाद तो ये बीडी वर्करों को जगह बताने में और उनको सर्वे फ्लैट बताने के बाद से सब मेजरमेंट करने के बाद से देरी कर को ये करें। बाद में हमें थोड़े सियासतदारा एक MLA से उनके सब मिलकर उनके आज्ञा को अपने आज्ञा को थोड़े गरीब आज्ञा नहीं बनाना तो हाथ नहीं सुनो को उनको ये करने को उनके प्लाटर से भी लेके अपने आज्ञा को अपने चाटुकार आज्ञा को उनको लेकर दे डाले हैं। हमें इसको पूरा कंडेम करते हैं। हमारे को बीडी वर्करों को जो 817 आज्ञा वो पूरे उनको देना, दूसरों को देना नहीं, उनको हमें डिमांड कर रहे हैं। संक्रांति त्यौहार के मौके पर आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने इजाफी बसों को चलाने का फैसला लिया है। संक्रांति त्यौहार दोनों तेलुगु रियासतों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मुसाफिरीन की बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए AC और डिलक्स बसें चलाई जाएगी। विजयवाड़ा के APS RTC ट्रैफिक मैनेजर श्याम सुंदर ने बताया कि रोजाना आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात से तेलंगाना के लिए 200 से ज़ायद बसें चलती हैं। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मजीद 200 इजाफी बसें चलाई जाएंगी। यहाँ से तेलंगाना जाने वाले पब्लिक के वास्ते हम गाड़ियाँ चला रहा है। तेलंगाना में डिफरेंट एरियाज़ को लाइक करीमनगर, निज़ामाबाद, महबूब नगर, वरंगल और कोदाड़ा, सूर्यापेट सब जगह को गाड़ी चलाना चाहता हूँ मैं। ये संक्रांति फेस्टिवल के दिन में ट्रैफिक क्लियरेंस करने के वास्ते 200 गाड़ियाँ ज़्यादा प्लान कर दिया था। रेगुलर गाड़ी 200 गाड़ी चल रहा है, उसमें डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, AC गाड़ियाँ है, सुपर लग्जरी है, डिलक्स है, ये सब आपके वास्ते चल रहा है। गाड़ियाँ ज़्यादा डिमांड है, डिमांड के बारे में हम सोच के उसकी कन्वीनियंट के तरफ से हम गाड़ियाँ बढ़ते। मंगलगिरी में तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में पोलिट ब्यूरो इजलास का आगाज हो गया है। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पोलिट ब्यूरो इजलास का आगाज हुआ। इजलास के दौरान 14 अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिसमें अहम मंदिरों पर हो रहे हमलों के अलावा तिरुपति लोकसभा के ज़मीनी इंतखाबात और अमरावती के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के आगाज़ से कबल आंजहानी NTR के मुजस्समे पर फूल माला पेश किया गया। इसके बाद पार्टी के उसूल और ज़वाबित पर अमल आवरी से मुताल्लिक़ नए अरकान को हलफ दिलाया गया। पोलिट ब्यूरो इजलास में तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गजपति राजू के अलावा बालाकृष्णा, नारा लोकेश, B ओमा गैर हाजिर रहे। आंध्र प्रदेश सिविल फेडरेशन के कन्वीनर बाबू राव ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत इस्लाहात के नाम पर आवाम पर इजाफी माली बोझ आयद कर रही है। मरकजी और रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। बाबू राव ने कहा कि 6 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तमाम कारपोरेशंस और
म्यूनिसिपल दफातर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। बाबूराव ने रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसी इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। Andhra Pradesh state government had decided to enhance the property taxes in urban areas. The central government directed all the state governments to implement urban reforms. In the name of urban reforms, the municipal acts was amended in the Andhra Pradesh. And also the property value based taxation system, it was introduced. It leads to the huge burdens on the urban people. Not only property tax, the water charges and drainage and garbage user charges should be collected. The government is planned. The huge burden on the urban amenities. The central and state government both together colluded and they converted the urban amenities into a commercial activity. Now the government is adamant. They are not hearing the urban people. तेलुगुदेशम रुकन कानून साज काउंसिल बीटेक रवि को पुलिवेंदुला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया है। बीटेक रवि पर साल 2018 में पुलिवेंदुला में हालात बिगाड़ने का इल्जाम है। कल रात उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह बीटेक रवि को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया है। तेलुगुदेशम पार्टी ने इस वाक़े को सियासी साजिश करार दिया है। पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाले कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए वैक्सीन तैयार करने वाले साइंसदानों को आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुबारकबाद दी। कोवैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक और पुणे के सीरम इदारे की जानिब से तैयार करदा टीके को DGCA ने मंजूरी दे दी है। चंद्रबाबू नायडू ने इन दोनों इदारों के साइंसदानों और अमले की सताइश की। चंद्रबाबू नायडू ने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले अमले की भी सताइश की। इस वक्त की अहम खबर, आंध्र प्रदेश में कोरोना के केसेस में आई कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 128 नए केसेस दर्ज। साबिक में रोजाना 6 से 8 हज़ार केसेस हो रहे थे दर्ज। पिछले 24 घंटे में 3 अमवात हुई। सबसे ज्यादा चित्तौड़ में 21 मामले दर्ज हुए। बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ 128 नए केस दर्ज हुए हैं। साबिक में रोजाना 6 से 8 हज़ार केसेस दर्ज हो रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज